डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Good evening. Myself, Dr. Naishal Rawal, would like to welcome you all at Chaitanya Studio, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad. In the last sessions, we had talked about the block 2, that is related to the environmental factors, physical factors, and the cultural factors, how that affect your business or a business unit. In this unit, we will be talking about the natural resources and the sustainability of the various environmental resources. So, today's sessions we will be covering about the block 2, natural environment resources and various environmental issues. Under that, we will be having the unit 2, that is natural resource and the sustainability. Once again, I would like to welcome you all at the Chaitanya Studio. These are the learning objective and the introductions for this particular unit. In this unit, we will be covering about the renewable and the non-renewable resource. We will be covering the topics related to the what are the various limitations for non-renewable resources. We will be also talking why do we need the renewable resource, and at last slide will be for the strategy for the conservation of natural resources. हर एक कंट्री के पास कोई ना कोई रिसोर्सेज अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज, और उसको कैसे कंजर्व किया जाएगा, कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में हम चर्चा करेंगे उसके रिलेटेड. So right now let us start with the short introduction of this unit. Sustainability means what? तो कि it refers to the ability of keeping certain status or process in existing system which is already linked with the biological or human system with reference or with respect to the ecology. It is also seen that ability of an ecosystem to the function as well as to maintain the productivity for the long lasting period, which refers to the sustainability. Sustainability का मतलब ability of keeping the certain situation, status or a process, and which is being linked with the human system as well with respect to the ecosystem. अब natural resources क्या है? So it is already connected or comprises of land, several raw materials which can be found in the occurring of the natural substance. जो कुदरती तौर पर अवेलेबल है, मौजूद है, उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. Sun, water, air are the natural resources. Okay, it is divided into two parts, renewable and non-renewable. Over a short period of time is called renewable, and such kind of resources are advisable to use as often it renews so fast, which will regenerate by the time you will be able to use it. Biofuels, which are the part of the renewable resources, which are being made from the living organism as ethanol derived from the corn. These are the renewable resource जो short period time के लिए होता है, but it takes a time to regenerate. It regenerates the fast. Non-renewable resource which is mainly used faster that it can made by the nature. वो इतनी तेजी से इस्तेमाल किया जाता है कि वो नेचर से फिर से बनता नहीं है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, नेचर गैस, न्यूक्लियर पावर, यूरेनियम जिसको हम कहते हैं. ठीक है. सो गुजरात में एक जगह है, कच्छ नाम का एक रीजन है, वहाँ पर कोयला का प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से होता है. ठीक है. कंपनी है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उनका एक कोल माइंस था पानंद्रो में. कच्छ में एक जगह है पानंद्रो नाम की, भुज से तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर है. वहाँ पर एक कोल माइंस थी उसकी. वो जो रीजन था वहाँ पर उसको
एक बार उसको यूज़ करने के बाद ना वहाँ से कोयला फिर से निकलता नहीं है, जितना मौजूद था उतना निकल गया। अब उसमें क्या हुआ कि उसके पहले एक जगह आती है पानंद्रो से कुछ किलोमीटर पहले, माताना मढ़ नामनी जगह है, तो वहाँ पर उसको कोयला मिल गया था, तो वहाँ पर भी उसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। फिर पानंद्रो जो विस्तार है, एरिया है, और माताना मढ़ जो एरिया है, वहाँ पे बीच में वो नया नया कुछ ना कुछ कोयले निकलते जाते, तो नई नई जगह पर वो मिनरल्स फाउंड करते जाते हैं। तो इट टेक्स अ टाइम। तो नेचर ने जो दिया है वो अगर सही ढंग से उपयोग नहीं किया, या नेचर ने जो दिया है उसको फिर से यूज़ करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि वो उसको नई नई जगह से ढूंढते रहना पड़ेगा, वो एक ही जगह से फिर से वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, कैन नॉट बी ग्रोन और कैन नॉट बी जनरेटेड ऑन द स्केल विच कैन सस्टेन क्विकली एज इट कंज्यूम्ड। तो कोयले का इस्तेमाल ज्यादा कहाँ होता है? तो कि बिजली को उत्पन्न करने के लिए। एक बार यूज कर दिया पावर जनरेशंस, फिर कुछ नहीं होगा। सो फॉसिल फ्यूल्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड बायोफ्यूल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ना, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो क्या लिमिटेशंस है आइए देखते हैं। सबसे पहले वो बहुत तेज इस्तेमाल होते हैं, विच कैन नॉट बी रिन्यूड, harmful by the product upon the combustion or by creating the pollution, उसको जलाया जाता है। Mining will lead to the irreversible damage to adjoining environment, black smoke जो मैंने पिछले सेशंस में भी बात किया था, पिछले स्लाइड्स में भी बात किया था। Fossil fuel pollutes the environment, वहाँ पर जहाँ माइंस होती है वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, दे गेट इवेंचुअली रन आउट, जितना प्रोडक्शन था, जितना मौजूद था वो हो चुका, अभी उससे ज़्यादा अगर ढूंढना हो तो जगह चेंज करनी पड़ेगी, वहाँ से फिर से मिलने वाला नहीं है, और हम बहुत तेज़ी से उसका इस्तेमाल करते हैं, इतनी तेज़ी से इस्तेमाल करते हैं कि उसको नए ढूंढने में समय लगता है। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एक ये लिमिटेशंस है। एंड इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ऐसा भी नहीं है कि एक बार यूज़ करने के बाद तुमको अगर उसको फिर से यूज़ कर सकते हो। ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसको जलाते हो किसी काम से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एंड दिस कैन लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, राइट। अनसीजनल रेनफॉल, मई महीने में बारिश, अप्रैल में बारिश, राइट। So this is the result of global warming. We are not blaming any one particular country, but there are also other countries. तो उसको environmental protections law सब बनाया जाता है कंट्री में भी as well as across the globe. ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया या एशियन कंट्रीज में नहीं है, दूसरे डेवलप्ड नेशंस में भी है, राइट। सो 2015 में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी लाए थे, और 2000 के साल में हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी लेकर आए थे। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, हेल्थ रिस्क, डिमांड एंड सप्लाई, रनिंग आउट एक्सेट्रा आर these certain factors which leads to the limitations of non-renewable resources. 24 में से 12-15 घंटे अगर माइंस में काम करेगा तो हेल्थ इश्यूज तो रहेगा ही रहेगा। पूरे दिन वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अपने शरीर में, तो अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। पूरे दिन वो कोयले निकालने के लिए मशीनरीज में काम करेगा तो आसपास के नॉइज से शायद उसको हेल्थ इश्यूज हो। हाई ब्लड प्रेशर्स, हार्ट बीट हाई रहती है, ठीक है। एनवायरमेंटल को नुकसान जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में अपना हेल्थ इश्यूज भी है, डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम रहेगा। दिस आर द मेजर लिमिटेशंस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नाउ आफ्टर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के कुछ लिमिटेशंस देखने के बाद द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड रिन्यूएबल रिसोर्स। एक नया
मार्केट में आया हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों इतना मार्केट में आ गया, क्योंकि पेट्रोल सिर्फ प्राइस इंक्रीज होती है इसीलिए नहीं, इट पॉल्यूट्स दी एयर। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI कितना रहता है, तो कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता होगा वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, कि एयर क्वालिटी वहाँ पर ख़राब है। तो जो लोग इंडस्ट्रीज़ के आसपास जो लोग रहते हैं, दे माइट बी फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज और हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो इन सब से बचने के लिए, इन सब से दूर होने के लिए या इन सब से बाहर निकलने के लिए रिन्यूएबल रिसोर्स का ज़रूरत पड़ता है। आइए देखते हैं। It is seen that the person wants electricity, they need to buy it from someone else, and the average person will have to access to buy coal, mining equipments, coal fire power plants to make their own electricity. तो ऐसा पॉल्यूशंस ना हो और कोयले का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ना हो, वी आर कन्वर्टिंग आवर रिसोर्सेज टुवर्ड्स द सोलर प्लांट, राइट? So renewable energy system on the whole serve as a very important step for keeping the national as well as international infrastructure intact in order to have its own important to understand the scalability of renewable energy solution. A person who cannot afford their own coal power plant will normally capable of purchasing the home solar, जिसका मैंने अभी बात किया। खुद के घर पे भी सोलर प्लांट लगा सकते हैं, छोटा सा, राइट? नेचुरल रिसोर्स से ही आता है वो। सो ऑन कंसिडरिंग द एम्प्लॉयमेंट साइड, द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बिकम्स मोर अट्रैक्टिव, will meet the renewable resources, which further leads to the increasing the employment, especially in the energy sectors, right? इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम जो इस्तेमाल करते हैं, तो जो कंपनी बैटरी बनाती है उसका भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बैटरी प्रोड्यूसर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। सो अल्टीमेटली दे विल बी क्रिएटिंग द न्यू जॉब, सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मे जनरेट। It is being visualized that there exists lots of good reason to move towards the use of renewable energy, which can be both current scenario as well as in the future. So renewable energy हमें क्यों चाहिए? Renewable energy is reliable, will be cheaper once technology and infrastructure improve. सस्ता, आपको 1.25 लाख में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलता है, 2 व्हीलर की मैं बात करूँ तो, लेकिन उसके बाद आपको पेट्रोल का कोई एक्सपेंडिचर ही नहीं है। बैटरी का खर्चा आएगा लेकिन वो 4-5 साल के बाद आएगा, अभी 5 साल में तो कभी आने वाला नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंप्रूव होगी। बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना होगा कि भाई व्हीकल में जो बॉक्स आता है वो आप घर पे भी ले जा सकते हो, या तो अपने फ्लैट या बंगलोज में जो मीटर आता है वहाँ से भी तुम चार्ज कर सकते हो, वो एक प्राइमरी सोर्स है। लेकिन रास्ते में अगर आप व्हीकल लेकर जाते हो और बैटरी ख़त्म हो गई तो चार्जिंग स्टेशंस होना चाहिए, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहना चाहिए। कुछ कंपनीज़ है जिन्होंने अपने खुद के चार्जिंग स्टेशंस सेटअप किए हैं हाईवेज़ पर, समय के साथ साथ वो भी बढ़ेंगे। इट इंक्लूड सोलार, wind, geothermal, hydropower, tidal energy, along with the biofuels which are grown and harvested without fossil fuels. Non-renewable energies like coal, petrol require the cost explorations. उसको ज़मीन में से निकालना पड़ेगा, which are logically quite dangerous as it involves mining and drillings and more expensive, as well as its supplies decreases and more increases in the demand. Renewable energy produces only minute level of the carbon emission and hence help to the fight against the climate change that has caused by the fossil fuels usage. अब बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों से हम उसको कंजर्व किया जाए। तो कंजर्वेशन विच इज़ क्वाइट सिमिलर ऑफ द डेवलपमेंट फॉर अ पर्सन which aims to achieve the human goals mainly used by the biosphere.
broader conceptions conserving the earth itself, protecting its capacity or self-renewable, particularly complex problems, non-renewable resources like oil, coal, other minerals are there in the great or a huge demand. तो नेचुरल रिसोर्सेज जिसके पास अवेलेबल है यानी जिस कंट्री में अवेलेबल है उसको सही ढंग से अगर उपयोग करना ही चाहिए तो उसको कंजर्वेशन भी होना चाहिए. ठीक है. Current thinkings also favors the protections of entire ecological region by creating the biosphere reserves. Natural resources are very important basis for the stable national economy as well as the social development. Exhaustible and non-exhaustible are the two category. Exhaust includes the minerals, non-exhaustible includes the forest and the grasslands. The strategy to preserve the natural resources are conserve किया जाए, environmental laws बनाया जाए and divided into the two parts, exhaustible and the non-exhaustible. With the high industrializations and the urbanizations, natural resources are in highly or a great demand and their large scale exploitations and consumptions which resulted in the weakening, decreasing existence of the resources are quite difficult. शहरीकरण की मैं बात करूँ या उद्योगकरण का मैं बात करूँ, धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कि नेचुरल रिसोर्स को वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है. ठीक है. एंड वन डिफिकल्ट टास्क faced by all the country is guarantee that lasting utilization of natural resource at the lowest possible environmental cost while still assuring economic and the social development. हर एक कंट्री के पास जितने भी नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है उसका यूटिलाइजेशंस उस हिसाब से किया जाए कि जो कम से कम पॉसिबल वेज में हो और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों ही एक साथ किया जाए. क्योंकि जैसे पहले भी मैंने कहा कि रिसोर्सेस ऐसे यूज़ करना चाहिए कि जो आने वाली जनरेशन्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं. तो प्रेजेंट जनरेशन हैज़ टू यूज़ those resources or available resources in those manners कि वो future generations को भी helpful किया जा सकता है. तो कैसे अपने environment को protect करें? तो सबसे पहला या immediate purpose है कि भाई legislations के ज़रिए हम उसको protect कर सकते हैं, which controls the natural resource, which controls the state resource, and that directs the development of resource privately controlled. ठीक है. एक एग्जाम्पल से मैं अपना लेक्चर यहाँ पर एंड करूँगा. सबसे गर्मी में जब गर्मी बढ़ती है तो हम ना एयर कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अब पहले हम कूलर के इस्तेमाल करते थे, फिर अपने वहाँ पर विंडो एसी आ गया कि जिसमें सिर्फ रेगुलेटर हॉट एंड कूल साइड घूमता था. फिर आए रिमोट कंट्रोल वाले टेम्परेचर सेट एंड राइट नाउ वी आर हैविंग दी स्प्लिट एयर कंडीशंस कि उसका यूनिट जो है वो जो मशीन है वो घर के बाहर रखा जाता है और जहाँ से वेंटिलेटर है एसी का वेंटिलेटर वो रूम के अंदर रखा जाता है. अब नॉर्मली हम एसी कब इस्तेमाल करते तो कि हम एसी इस्तेमाल करते हैं कि भाई गर्मी के मौसम में. ठीक है. अब गर्मी कब होती है अपने वहाँ पर तो कि मार्च एंड से धीरे धीरे शुरुआत होता है, अप्रैल में आता है, मई महीने में आता है, ज़्यादा रहता है,
जून महीने में थोड़ा सा कम होने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और मिड जून और जुलाई से तुम्हारा रेनफॉल का सीज़न शुरू होगा। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जब मैंने पहले सेशंस में बात किया था ना, तो वो यहाँ पर एक आता है कि पहले एयर कंडीशन होना एक लग्जरी आइटम थी। Nowadays you will be finding the centralized AC. You may find one AC in one particular room. तो जहाँ अगर 3 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट है तो वहाँ तीनों रूम में आपको एयर कंडीशन देखने को मिलेगा। सपोज मान लो कि आपने बाहर से आए, बाहर 45 डिग्री गर्मी है मई महीने में, और तुमने AC ऑन कर दिया, आते ही सीधा 20 डिग्री के ऊपर तुमने सेट कर दिया, उसके टेम्परेचर सेट करना होता है। तो वो बाहर है 45 डिग्री और घर पे है तुम्हारा रूम में 20 डिग्री। अब तुम्हारे रूम में जो AC है वो तब तक चलेगा जब तक रूम टेम्परेचर 20 डिग्री तक सेट नहीं किया जाता है। जब तक वो 20 डिग्री तक सेट नहीं होता है, यानी रूम टेम्परेचर 20 डिग्री तक नहीं पहुंचता है, तब तक जो एयर कंडीशन का यूनिट है वो चालू रहेगा, और उसका नतीजा जो आपने घर पे मीटर लगाया हुआ है ना लाइट बिल का, ठीक है, एनर्जी जो यूज करते हैं वहाँ पर जाएगा। वो मीटर घूमता रहेगा कब तक? जब तक तुम्हारा AC 20 डिग्री की टेम्परेचर तक सेट नहीं रहता है तब तक। द मोमेंट योर रूम टेम्परेचर बिकम द 20 डिग्री, तो वो अपना कट ऑफ करेगा, कुछ टाइम के लिए AC बंद हो जाएगा। ठीक है, एक इस्तेमाल ये होता है। अब दूसरा इस्तेमाल क्या होता है, तो कि हम 27-28 पे अगर उसको सेट करते हैं तो कितना असर होता है। इट मे टेक सम टाइम। 20 डिग्री पे थोड़ा सा जल्दी सेट होता है, 27-28 थोड़ा सा जल्दी नहीं रहता है, लेकिन जो मीटर घूमने की स्पीड होती है या जितनी तेजी से तुम्हारा लाइट बिल का मीटर घूमता है वो थोड़ा सा कम घूमेगा। तुम सुबह से लेकर शाम तक 20 डिग्री पर AC चलाओ या सुबह से लेकर शाम तक 28, 29 या 27 पर चला दो, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर कंजप्शंस, पावर कंजप्शंस। क्यों? क्योंकि बाहर 45 है, तो AC का जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, तो कि 45 डिग्री की गर्मी को 20 डिग्री पर लाकर सेट करता है, तो उसको भी एक टाइम लगता है। रात को आप बालकनी में कभी खड़े हो और देखना हर एक के घर से ना बाहर का जो AC का वेंटिलेटर का होगा ना उसकी आवाजें आती रहेगी, एंड दैट अफेक्ट योर एनवायरमेंट एज वेल। क्योंकि घर के अंदर ठंडी हवा है लेकिन घर के बाहर वो गर्म हवा फेंकते जाता है, स्प्रेड करता है। वो अकेले हमारे घर से नहीं है, जहां जहां एयर कंडीशन है वहां से होता है। अल्टीमेटली वो सारी हॉट एयर कहां जाएगी? इट विल मर्ज। ठीक है, तो अफेक्ट किसको होगा? एनवायरमेंट को, रिसोर्सेस को। तो कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? इमीडिएट पर्पस है अपना लेजिस्लेशंस के जरिए लॉ एंड ऑर्डर्स लेकर आओ कि भाई पेड़ पौधे काटोगे तो तुमको सजा होगी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाओ। सुबह 8 बजे 9 बजे AC का जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू ऑन स्विच ऑन दैट, बट हम स्विच ऑन कर लेते। दोपहर के 3-4 घंटे को जरूरत पड़ती है, लेकिन नहीं, वो ह्यूमन नेचर भी है। भाई मेरे को भी बहुत तेज गर्मी लगती है, AC के बगैर तो मेरे को चलेगा ही नहीं। ये सब तो दिमाग का खेल है। बाहर ऐसे कई सारे लोग हैं जो कड़ी धूप में काम करते हैं। ठीक है, सो कंट्रोल करो रिसोर्स को। नेशनल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है आपके पास उसको भी कंट्रोल करो, प्रिजर्व करो। स्टेट के पास जो रिसोर्सेज है वो भी प्रिजर्व किया जा सकता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स प्राइवेटली कैन ऑल्सो बी कंट्रोल। गाड़ी तुमने धूप में पार्क की है, पार्किंग के लिए तुम छांव ढूंढ रहे हो, लेकिन कभी ये सोचा है कि प्लांटेशन भी करना पड़ेगा? We all find the shadow to park our car, but थोड़ा सा प्लांटेशन तो करो। अब गाड़ी के अंदर जो गर्मी होती है, जो टेम्परेचर होता है, वो बाहर से ऑलमोस्ट डबल होता है। उसमें भी ब्लैक कलर की कार तो ज़्यादा गर्म होती है अंदर से, और हम गाड़ी में अंदर जैसे ही जाते हैं सीधा AC ऑन कर देते हैं, और अपना घर आएगा तब तक वो AC का इफेक्ट भी इतना नहीं करेगा।
तो पहले वो गाड़ी के अंदर की जो गर्म हवा है वो खिड़की खोल के बाहर निकालो थोड़ी सी, फैन चलाओ, फिर एसी ऑन करते रहो, राइट. So hence here we noted that conservation of natural resources are usually embraced in the conception of conserving the earth by protecting its capacity for self-renewal in complex problems of non-renewable resources. So here we saw about the strategy of the conservations of natural resource. We also focused more on the renewable and the non-renewable resources. ठीक है, एनवायरमेंटल लॉस है तो हम प्रिजर्व कर ही देंगे अवेलेबल रिसोर्सेज को, बट एज एन इंडिविजुअल वी कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर अवेलेबल रिसोर्सेज. So finally here we ended with the unit 2 natural resource and the sustainable. Thank you very much. In the next session we will be talking about the block 2 unit 3. Once again I am highly thankful to you. See you in the next sessions. Thank you very much.